Assalamualaikum guys, my name is Tawar Zahid and in this video we'll be going over the peripheral structure of bacteria और उसके साथ साथ also the morphological diversity of bacteria, ठीक है. And please go and watch the previous videos, they're pretty important, ठीक है, and it's all linked. और इसके साथ साथ also I know in the previous video मैंने कहा था कि we're left with a couple of things from cyanobacteria that क्या कहते हैं nostoc वगैरह, all of those things, ठीक है. तो we will be covering those but not right now. अभी I want to get done with the structure and the movements and the shapes and all of those things. तो उसके बाद हम वो करेंगे. तो if anyone is watching this video after watching the previous video, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि I'll be making a video about that, तो इसलिए confuse ना होना, वो भी मैं cover करवाऊँगा लेकिन कुछ अर्से में, ठीक है. So now let's just get started. Okay guys, so talking about the peripheral structure of bacteria, we'll basically talking about like stuff that is outside the cell membrane, ठीक है. अंदर वाली जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने the cell के चैप्टर में पढ़ी थी. It's a pretty simple chapter क्योंकि you don't have organelles, ठीक है, आपके पास वो mesosomes आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है. Pretty simple stuff. If it's not difficult at all, trust me on that. और वहाँ पे हमने चीज़ें cover की थी, but now I want to do it in a bit more detail because they tested quite heavily in this chapter, ठीक है. अच्छा, so हमारे पास सबसे पहले we have two things, ठीक है. So we have an envelope and then we're going to have a cell membrane, ठीक है. अच्छा, this cell membrane, okay. The envelope is further going to be having, so this is from the envelope is further going to be having two different structures, ठीक है. There's going to be the glycolyx and then there's going to be the cell wall, ठीक है. और सेकंड हमारे पास जो चीज़ होती है, बल्कि नहीं, सॉरी, माय बैड, आई रोट इन द सेम वन, ग्लाइकोलाइक्स एंड द सेल वॉल, ठीक है. तो ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं. तो जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, सो लेट्स से दिस इज़ माय सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर मेरे पास लेट्स से ये मेरे पास सेल वॉल आ गई है. This is my cell wall, and now after that what I'm going to be having will be my glycolyx. और glycolyx की further two types होती हैं and we'll discuss that. There's a slimy form and then there's a capsule form, ठीक है. And this is very important because they love to make diagrams like these and ask you कि बेटा मुझे बताओ outer layer कौन सी है, inner layer कौन सी है और innermost layer कौन सी है, ठीक है. Okay guys, talking about the glycolyx, ठीक है. Glycolyx is basically the name given to the outer covering on the outside of the bacterial cell wall. So it's the outermost covering and it's basically outside the bacterial cell wall, ठीक है. तो cell wall के बाहर सबसे outermost peripheral most चीज़ है bacterial cell wall. Pretty simple, right? अच्छा, it is made up of polysaccharide mostly. You don't need to know कौन सा specific molecule होता है, but polysaccharide, and in some cases you also have some conjugated proteins, ठीक है, glycoproteins वगैरह, आपके पास lipoproteins, sarcoproteins वगैरह आ जाते हैं. But we like this is, just know कि this is not always, ठीक है. Okay, so moving on to the capsule, ठीक है. हमारे पास जो glycolyx की two forms होती हैं. So let's talk about the capsule first. Capsule is this condensed layer which is very tightly associated with, condensed layer tightly associated with, and this is important, I'll tell you why, with the underlying cell wall, ठीक है. Sort of like एक glove जो आपने बहुत tight, एक very tight glove, sort of like that, okay. अच्छा, पर इसकी जो सबसे key characteristic है ना, it's going to be sticky and gummy, ठीक है. So it's this capsule that's very, sorry, my bad, okay, so it's this capsule that's very tightly bound, ठीक है, and it's very sticky and also very gummy, ठीक है. तो इसका क्या होता है, this is going to be promoting adhesion, ठीक है. बेसिकली बैक्टीरिया एक जगह पर चिपका रहेगा, ठीक है. It's going to be showing adhesion, ठीक है. And as a result of this, what happens is कि एक तो A, it's going to adhere to other things, मतलब for example it's going to adhere to, let's say कि बैक्टीरिया वॉल पे लगा हुआ है वहाँ से हटेगा नहीं, एंड सेकेंड adhere to each other. और जब बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ adhere करना शुरू कर देगा, it's going to form something called a biofilm, and this biofilm is very hard to kill. You won't really call it a colony, ठीक है. कॉलोनी आप उसे नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन इट्स बेसिकली कि काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल बैक्टीरियल cells which have a capsule, which have a glycolyx which is a capsule
आर एडहेरिंग टू ईच अदर, और उन्होंने एक बायोफिल्म सी बना ली है, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. ओके, अब हम बात करते हैं स्लाइम की, ठीक है. सो इन स्लाइम, सो स्लाइम ऑन द अदर हैंड इज लूजली अटैच्ड, ठीक है. दिस इज क्वाइट लूजली अटैच्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फंक्शन, ठीक है. इट इज स्लाइमी, इट्स इन द नेम, एंड इट्स स्लिपरी, ठीक है. अच्छा, अब दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सब कुछ इट अलाउज इट टू बी डिटैच्ड. हम स्लाइम को, स्लाइम लेयर जो होती है, स्लाइम ग्लाइकोलेक्स होता है, आई कैन जस्ट थ्रो इट एंड आई कैन रन, ठीक है. सो बेसिकली होता क्या है कि दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प मी डू फैगोसाइटोसिस, ठीक है. मैं फाइगोसाइटोसिस करवा सकता हूँ, सॉरी फाइगोसाइटोसिस प्रिवेंट करवा सकता हूँ. आई एम रियली एग्जॉस्टेड टुडे. अच्छा, फैगोसाइटोसिस प्रिवेंटेड, वाई? बिकॉज WBCs आए हैं, ठीक है. उन्होंने वहाँ पर आके ऑप्सोनाइजेशन करना, वो सब कुछ स्टार्ट किया, उसको मारने की कोशिश करने की है. बट व्हाट हैपेंस इज कि ये वाला हमारे पास, इट्स गोइंग टू मेक अ रन फॉर इट. अब वो अंदर से बैक्टीरिया निकल के भाग जाएगा और बाहर स्लाइम लेयर आ जाएगी, और उसको बस बेचारा WBC बैठ के ऑप्सोनेट कर रहा होगा, एंड इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट, ठीक है. एक तो ये चीज़ होती है, और सेकंड ये चीज़ कि हमारे पास ना, व्हाट इट हेल्प्स अस टू डू इज कि इट ऑल्सो प्रिवेंट्स recognition. Let me explain this thing to you. The slime, it's, so let's say कि जी ये मेरे पास सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है, ये मेरे पास लेट्स से इसकी सेल वॉल है. ओके, सो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, लेट्स जस्ट पुट इट हियर. सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू हैव सर्टेन प्रोटीन्स, राइट. मेरे पास कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगे, ठीक है. एंड दीज रिसेप्टर प्रोटीन्स विल बी डिटेक्टेड बाय द body, by the body's immune system कि ये तो non-self है, and the body will cause opsonization and then eventual phagocytosis. But what the slime layer, what the slime glycolyx does is कि it's sort of going to, let's just use a color over here, it's sort of going to cover these things, ठीक है. तो it's going to sort of like form this layer. तो सबसे पहले तो it's going to be preventing the recognition. Why? Because WBC आएगा, ठीक है, and the WBC will not be able to डिटेक्ट दिस एंटीजन, ठीक है. सेकेंड, अगर लेट्स से उसने डिटेक्ट कर भी लिया तो व्हाट द सेल कैन डू इज कि सेल यहाँ पे बाहर ऑप्सोनाइजेशन स्टार्ट हुई है, लेट्स से ऑप्सोनाइजेशन हैज स्टार्टेड, तो अंदर से जो बैक्टीरिया का सेल होगा वो भाग जाएगा, ठीक है. इट विल शेड द स्लाइम एंड इट विल मेक अ रन फॉर इट, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट डज. एंड लास्टली हमारे पास क्या होता है कि द स्लाइम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है. तो इट्स बेसिकली, दिस इजंट अ वेरी हाईली टेस्टेड थिंग, लेकिन व्हाट इट मीन्स इज कि जो बैक्टीरिया है ना उसका डायमीटर बस बड़ा हो गया, ठीक है. इट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन सर्टन केसेस, ठीक है. एंड दैट्स ऑल दैट आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट द पेरिफेरल स्ट्रक्चर. एंड आई वुड से कि बिफोर यू नो वी गो इनटू मोर डिटेल विद दिस चैप्टर, इट विल बी गुड अगर आप लोग अपने A1/फर्स्ट ईयर की किताबें खोलें एंड जस्ट रीड इनटू. सो देयर इज दिस टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल. आई वुड से कि प्लीज गो एंड रीड that once. And now let's move on to the morphological diversity of bacteria. Okay guys, so moving on to the morphological diversity, and so ये वाला जो section है, this is more tested. तो morphological diversity means कुछ इसमें रट्टे वाली चीज़ें आ जाती हैं, and then there's the actual morphological diversity which is the shapes and how those shapes are arranged and all, ठीक है. तो आज की क्लास में let's just do an introduction to this, and then I'll make another video जिसमें we'll go into proper detail about all of these different shapes and how they're arranged, ठीक है. अच्छा, ओके, अब यहाँ पे इट्स जस्ट अ बिट बोरिंग रट्टे वाली चीज़ें, बट वी डू हैव टू डू दिस. अच्छा, सो स्मॉलेस्ट ग्रुप में ना हमारे पास दो होते हैं. वी हैव फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, लेट मी क्विकली राइट इट, फाइटोप्लाज्मा, एंड देन वी हैव माइकोप्लाज्मा, ठीक है. अच्छा, व्हाट दे वांट यू टू नो इज कि फाइटोप्लाज्मा इज गोइंग टू बी इन्फेक्टिंग प्लांट्स, P फॉर फाइटोप्लाज्मा, P फॉर प्लांट्स, एंड माइकोप्लाज्मास आर गोइंग टू बी इन्फेक्टिंग एनिमल्स, ठीक है. ओके, देयर स्फेरिकल, और इसके साथ साथ स्फेरिकल प्लस देयर 100 to 200 नैनोमीटर का इनकी डायमेंशंस होती हैं, ठीक है. सो अगेन दिस इज समथिंग दैट दे लव टू आस्क यू इन योर MDCAT एग्जाम, ठीक है. अच्छा, अब लार्जेस्ट ग्रुप में हमारे पास, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ठीक है. सो इट्स कॉल्ड
Eplopisium fischlosoni, ठीक है, it's a really weird name, fischlosoni, ठीक है, so Eplopisium fischlosoni, ठीक है, अच्छा, and this is basically going to be living in the gut of the brown surgeonfish of Red Sea. तो अगेन कभी एक ही टेस्ट में जनरली लाइक फ्रॉम माई एटलीस्ट फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस दे आर नेवर गोइंग टू आस्क यू स्टफ लाइक दिस, बट अगेन MDCAT में वो आपसे रैंडम चीज़ें पूछते हैं, व्हाट विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द फिश इन दिस गट ऑफ द ब्राउन सर्जन फिश ऑफ रेड सी, तो इट्स गोइंग टू बी Eplopisium fischlosoni, ठीक है, अच्छा, और इसका वन थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू नो एंड आई विल जस्ट ब्रिंग इट अ बिट हियर, ओके, सो इसका ये बात जहन में रखो कि इट्स 80 माइक्रोमीटर्स थिक, ठीक है, एंड इसके साथ साथ 600 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग, तो इट इज़ विजिबल, ठीक है, अच्छा, अगर अब हम इकोलाई पर आएँ तो इट्स नॉट, अगेन इसके सवाल थे ज़्यादा जब आई वाज लुकिंग एट योर MDCAT पास पेपर, सो आई डिसाइडेड टू इंक्लूड दिस, सो जस्ट नो कि दिस इज़ 7 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है, and 1.8 micrometers in diameter. अच्छा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो इकोलाई का होता है ना, सो व्हाट वी डू इज कि हम इकोलाई का, इफ़ वी हैव अ सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है, लेट्स से कि आई हैव अ पाइप दैट्स कैरिंग फ्रेश वाटर एंड आई हैव अ पाइप दैट्स कैरिंग स्विच वाटर एंड देयर साइड बाय साइड, एंड आई वांट टू सी कि कहीं पानी कंटेमिनेट तो नहीं हो रहा बाय दिस सीवेज लाइन, ठीक है, सो व्हाट आई डू इज कि आई test the water for the presence of E. coli. So this is basically tested to see if there is any fecal contamination in fresh water. So let's say I have a pond and I want to see कि अच्छा इसमें कहीं से septic drainage तो नहीं आ रही, ठीक है, तो I'll test to see if there is E. coli. Why? Because the E. coli is present in human feces, ठीक है, अच्छा, तो fecal contamination के लिए मैं check करूँगा, अच्छा, उसके बाद अब दे लव टू आस्क यू एक, सो आई सॉ दिस लॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस, जिसके अंदर दे बेसिकली वर आस्किंग यू कि जी एक जनरल साइज बैक्टीरिया का क्या होता है, ठीक है, सो जस्ट नो कि जी इट्स गोइंग टू बी 0.1 माइक्रोमीटर्स टू 600 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, ठीक है, तो 0.1 वाला कौन सा है, फाइटोप्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा, एंड हमारे पास 600 माइक्रोमीटर्स वाला कौन सा है, वो हमारे पास Eplopisium fischlosoni है, ठीक है, प्रीटी इजी राइट, ओके, अब हम लोगों ने लेट्स मूव ऑन टू दिस 3 मेन शेप्स एंड देन वी आर डन फॉर टुडे, अच्छा, कोसाई इज बेसिकली स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, इसको याद करना बड़ा आसान है, डू यू सी दिस ओ ओवर हियर, तो जस्ट रिमेंबर इट्स स्फेरिकल शेप्ड, ठीक है, बेसिली इज बेसिकली स्ट्रेट स्लैश रॉड शेप्ड, ठीक है, और हमारे पास जो स्पिरली है इट्स स्पाइरल शेप्ड, इट्स प्रीटी सिंपल स्टफ, और प्लियोमॉर्फिक के बेसिकली ना वी हैव डिफरेंट शेप्स, इसकी देयर आर इवन सम प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरियाज जो कि अपनी शेप ड्रामेटिकली ऑल्टर कर रहे होते हैं, दीज वर्ड्स आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, तो डिफरेंट शेप्स, एंड ऑल्सो सॉरी माई बैड देयर आर एक्चुअली, वैसे इट्स करेक्ट, देयर आर 3 मेन शेप्स, ये जो प्लियोमॉर्फिक होता है दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अगेन नॉट अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज एग्जिबिट दिस, ठीक है, ओके, अब एक छोटी सी बात दैट आई वांट यू गाइस टू लीव विद दिस कि ये जो सो दीज आर द नेम्स राइट, ये बस इनकी शेप्स के बेसिस पे इनके नाम है, असल में इन रियलिटी जो हम लोगों के द वर्ड्स दैट वी यूज़ फॉर देम यूजुअली दे आल्सो हैव इन 3 में से कोई चीज़, फॉर एग्जांपल स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, कोकस, कोकस मीन्स देयर स्फेरिकल, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, कोकस, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू कीप दिस थिंग इन माइंड, एंड दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा सा इस पर एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट कि मैं इस पर सेपरेट एक पूरी वीडियो बना दूँ, इवन दो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, बट आई वॉन्ट टू स्टिल टीच इट कंसेप्चुअली, ताकि ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी, यू वोंट हैव टू मेमोराइज कि अच्छा दिस बैक्टीरिया इज लाइक दिस, यू कैन जस्ट कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड दिस, ओके, अच्छा, okay, so again these were just 2 things that weren't fixed, I wasn't able to fit this anywhere, and it's something that they are testing, acha, so Spirocheta plicatilis, I hope I'm pronouncing it correctly, just know कि इसकी जो dimensions हैं those are 250 micrometers की length है, and और इसके साथ साथ 0.75 माइक्रोमीटर्स की इसकी थिकनेस है, ठीक है, आई सॉ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर MDCAT एंड NUMS पास पेपर जिसमें उन्होंने पूछा हुआ था, अच्छा, एंथ्रेक्स बेसिलस इज बेसिकली दिस बैक्टीरिया, द रीज़न वाई इट्स इंपॉर्टेंट इज कि इसका जो कैप्सूल होता है ना,
the capsule is made up of polymerized D-glutamic acid. ठीक है, so they can ask you this, and it is made up of polymerized D-glutamic acid. अच्छा, और यहाँ पे just keep this thing in mind, this is not polysaccharide, just by the way, like I don't think I have to write this, but just know it's not polysaccharide. Okay, so that's all for this class. ठीक है, and just one thing that I feel like I haven't emphasized, so basically हर बैक्टीरिया के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, उसके बाद एक सेल वॉल होगी, और फिर ग्लाइकोलेक्स विल आइदर बी अ कैप्सूल और इट विल आइदर बी अ स्लाइम. ठीक है, एंड देयर आर सम बैक्टीरियाज जिसमें सेल वॉल नहीं होती, एंड देयर आर सम बैक्टीरिया जिसमें ग्लाइकोलेक्स नहीं होता. लेकिन जस्ट नो कि सेल मेम्ब्रेन इज दैट वन थिंग दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. ठीक है, ग्लाइकोलेक्स दोनों नहीं होती, ग्लाइकोलेक्स आइदर कैप्सूल फॉर्म में होगी या वो स्लाइम फॉर्म में होगी, डिपेंडिंग ऑन बैक्टीरिया को क्या काम चाहिए. एंड ऑल्सो जस्ट वन लास्ट थिंग, सम बैक्टीरिया कैन इवन टॉगल बिटवीन कैप्सूल एंड स्लाइम फॉर्म, कि वो कभी कभार स्लाइम फॉर्म डाल देंगे जब उन्होंने लेट्स से बॉडी के अंदर जाना होगा, सो दे नीड टू एडहेयर टू योर स्किन, तो दे विल हैव अ कैप्सूल फॉर्म, एंड देन ब्लड में जाके दे वांट टू एस्केप फैगोसाइटोसिस, तो देन दे विल create a slime form. So I just want you guys to know that, and that's all for today.